कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, और कौन कहता है कि ओलंपिक का पदक नहीं आ सकता, एक गेंद तो तबीयत से उछालो यारो। वही हुआ आज। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई, बेहद अभिनंदन भारतीय महिला हॉकी टीम का। और जो परफॉर्मेंस हुई जस्ट फ्यू मिनट्स वे बैक आपके समक्ष थी, किस तरीके से परफॉर्मेंस थी भारतीय महिला टीम ने। शानदार प्रदर्शन, जानदार प्रदर्शन और सब कुछ कहा जाए। अगर मैन ऑफ द मैच की बात होती है, विमेन ऑफ द मैच की बात होगी, गुरजीत कौर ने एक गोल किया, 1-0 से जीत हासिल की भारतीय टीम ने। लेकिन ये थी सविता जिन्होंने की पूरी तरह से ब्लॉक किया अपने ओपोनेंट को और एक ऐतिहासिक विक्ट्री भारत के समक्ष प्रस्तुत की है। मैं हूं आपके साथ राशिद हारून, मेरे साथ हैं श्रीदत्त एस पिल्लई और साथ ही साथ हैं मोना पारसारथी। हॉकी उनकी बीट है। कुछ ही मिनट्स पहले जब मोना ने हमें ज्वाइन किया था स्टूडियो के अंदर और जैसे ही भारतीय टीम की जीत मुकम्मल हुई, उस वक्त हमने अपनी आंखों से मोना की आंखों में आंसू देखे थे। बहुत भावुक क्षण था स्टूडियो के अंदर भी। चलते हैं मोना के पास। मोना, आपकी ज़बानी भारतीय हॉकी टीम की जीत। बिल्कुल, मतलब जिसको कहें कि एक चमत्कार हो गया है, समझ लीजिए। एक भारतीय हॉकी टीम, जब भी हम हॉकी की बात करते हैं तो हमारा एक गौरवशाली इतिहास है हॉकी में, लेकिन वो पुरुष टीम का है। महिला टीम को हम देखें तो ये तीसरी बार ही ओलंपिक में पहुंची है और यहाँ भी जो आगाज हुआ वो बहुत ही बदतर हुआ। लगातार 3 मैच हारी और उसके बाद करो या मरो के 2 मुकाबले जीतकर जिस तरह से आज ऑस्ट्रेलिया हॉकी के मैदान पर, ऑस्ट्रेलियन टीम क्या है और क्या कर सकती है, ये उनकी रैंकिंग भी बताती है और ये उनका प्रदर्शन भी बताता है। लेकिन दाद देनी होगी रानी रामपाल की इस टीम को, जिसने इस जीत से, ये सिर्फ एक जीत पदक के लिए नहीं है, ये इस खेल की दशा और दिशा बदलने वाली जीत है। Rashid, thank you so much for giving me enough time to recover. They say when the mind is full, the words are few. I'll give you some more time, Mona, to recover from that emotional outburst that you had. It's wonderful to see that. The land of rising sun is witnessing a dawn of Indian hockey, so to speak, and the women making a strong statement saying, men, if we can do it, we can do it as well. And Mona, coming back to you, 1980, when it seemed to have ended, we never knew it was ending. Even men's hockey playing in the semi-finals after 41 years, and to be joined by women, this is ecstasy, isn't it? This is a process for women hockey, if I may say so. After the debacle in Rio, where we finished last, the process has been started by the federation, the players, the coaches, everyone was involved, and this team is far better than what we see in the numbers. So, so I have seen these girls growing up, becoming mature. तो अगर हम ये देखें कि ये रातों रात हुआ है चमत्कार, तो ये रातों रात चमत्कार नहीं हुआ है। ये एक पूरी तैयारी के साथ टीम उतरी थी और सबसे इम्पोर्टेंट है इस कोविड टाइम्स में द मेंटल टफनेस, what everyone is talking about. Yesterday we have seen it was men's team, it was PR Srijesh, and today it was Savita. Absolutely. So the biggest factor was the mental toughness. They do not fear the goodwill, the reputation of the opposition team. So Absolutely. This is what matters. So we defended pretty well. Penalty corners were saved, but ultimately in a hockey match, what determines is a number. It's just one number that mattered, the one goal that mattered that India scored. It's time for us to take a look at that beautiful goal, which we never thought would be the historic moment. But after 60 minutes of hard-fought hockey, this is what it is. The beautiful moment. Just imagine that ball cutting into the Australian goal and the Indian women all going up. And we expected Australia to draw level, but what a wonderful defense that we had today, led by Savita, the goalkeeper. She was like rock solid in front of the goal, wasn't she? She's always been. Savita is, 202 caps. She for has India, played, yeah, for India. So she's very, very experienced players, and it was a matter of a time कि उसका जो if we talk about Savita, we have to talk about Gurjeet also. True, she has been receiving a lot of criticism, not converting penalty corners. India has received more than 30 penalty corners in 5 matches, and we could not convert even a 1 penalty corner. So this was the moment for Gurjeet also, and it is the defining moment for her.
डार्क हॉर्सेस के तरीके से खेल रहे थे। 1980s में वापस जाइए, मॉस्को ओलंपिक्स 5वें नंबर पर फिनिश किया था मॉस्को ओलंपिक्स में। उसके बाद रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, बहुत बड़ी बात थी क्वालिफिकेशन करना ही, और वहां पे नंबर 8 पर फिनिश किया। और इस बार टोक्यो ओलंपिक्स के लिए उतनी होप किसी ने नहीं की थी। एक बेहतर परफॉर्मेंस देके आएगी भारतीय महिला हॉकी टीम, इसी पर ही सब सब्र करेंगे। लेकिन जो आज कर दिखाया है, एक कहते हैं ना कि वो बर्डन जो होता है एक्सपेक्टेशंस का, वो शायद नहीं था। Monkeys off the back. Absolutely. Now we talked about, I mean, it's a very stylish statement to make that, you know, men, if we can do it, we can also do it. But if you look at the few matches earlier, Mona, it was the other way around. Because even while fighting the likes of Germany, we went down only by 2 goals when the men's team suffered a 7-1 heavy defeat against Australia, which meant probably the men were looking up to the women. And women were not fancied, men were always fancied. It was a so which revenge. means that they were the ones who set the tone for this so-called, Revenge. what do you call, kind of a rise that we can see? मेन वुमेन दोनों टीमों की अगर हम बात करें तो जिस तरह से वापसी की है 7-1 से हारने के बाद, ऑस्ट्रेलिया से जब हम हारे, तो अभी तक जो हमारा हॉकी का इतिहास रहा है, ये कहा जाता था कि हम कभी भी कमबैक नहीं कर सकते हैं, हमारी टीम चोकर है, घुटने टेक देती है दबाव के आगे। लेकिन पुरुष टीम ने पहले दिखाया कि 7-1 से हार, मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स याद आता है 2010, हम दिल्ली में बैठे थे ध्यानचंद स्टेडियम में और 8 गोल ऑस्ट्रेलिया ने किए थे। और सब लोगों का ये कहना था कि भारतीय हॉकी के सीने पे किए गए 8 गोल है, और यहाँ जब हम 7 गोल हो गए तो लोग कहने लगे, मतलब सारे हॉकी प्लेयर्स, हॉकी पंडित सब कह रहे थे कि 2000 सिडनी ओलंपिक के बाद यही एक टीम है जो पोडियम फिनिश कर सकती है ओलंपिक में। और जब ऑस्ट्रेलिया से हम हारे तो सबने हमारे यू नो आवर फैंस आर सो इमोशनल, हम तुरंत बोरिया बिस्तर बांध देते हैं कि इस टीम के बस का तो कुछ है नहीं, ये कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन जो कमबैक हुआ तो वो मेंटल टफनेस दिखाता है टीम की। और जहां तक लड़कियों की बात है तो आप देखिए, जर्मनी से हम हारे, नीदरलैंड से हम हारे, ब्रिटेन से हम हारे और बुरी तरह से हारे। उसके बाद ना हमारा पेनल्टी कॉर्नर सही जा रहा था, ना हमारा डिफेंस, लोग सब चीज में गलतियां निकाले जा रहे थे। लेकिन ये एक गोल और ये एक जीत, आप देखिए पूरी कहानी पलट गई। Absolutely. A solitary goal that India won by at the end of the day, which came in pretty early, but that was not enough. Australia that we were playing against, a very, very tough opponent, so which means the defense had to be at its best, and oh boy, they were at its best. The defense of Indian team. प्री मैच एनालिसिस पर मैंने एक शेर अर्ज किया था, उसमें ये कहा था कि बहारें फिर से पैगाम मोहब्बत लेकर आ सकती हैं, और बहारें फिर से पैगाम मोहब्बत लेकर आ गई हैं। भारतीय हॉकी टीम ने बहुत जबरदस्त जीत हासिल की है अप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। मोना से जानने की कोशिश करेंगे कि इस जीत के बाद मेडल की तरफ हम रुख नहीं कर रहे हैं कि मेडल आएगा या नहीं आएगा, लेकिन भारत के अंदर भारतीय महिला हॉकी टीम के मायने क्या होंगे और किस तरीके से भारतीय महिला हॉकी टीम का माहौल बदलेगा, और किस तरीके से आने वाले वक्त में, जो मैंने वर्ड यूज किया कि बहारें फिर से पैगाम मोहब्बत लेकर आई हैं, तो वो पैगाम मोहब्बत का क्या होगा भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए? मोना, मैंने जैसे शुरू में ही कहा राशिद कि ये जो जीत है ये सिर्फ पदक के लिए मिली जीत नहीं है, ये एक इस खेल की भारत में दशा और दिशा तय करेगी। आप किसी भी खेल को लीजिए, हमें रोल मॉडल्स की जरूरत होती है। जो हमारी जनरेशन है, हमारा ओलंपिक में गौरवशाली इतिहास रहा है, हम 8 बार वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन रहे हैं, लेकिन पुरुष हॉकी में, महिला हॉकी टीम ने हमने कभी इन लड़कियों को इस स्तर पर इस तरह से खेलते हुए नहीं देखा। तो अब अगर आप आज के बच्चों की साइकी देखें कि उन्होंने देखा है महेंद्र सिंह धोनी को वर्ल्ड कप जीतते हुए, उन्होंने देखा है विराट कोहली को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलते हुए, सचिन तेंदुलकर को देखा है, तो उन्होंने वो जमाना नहीं देखा जब हॉकी में हम इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरा अपना दबदबा छोड़े हुए थे। तो ये जो जीत देख रहे हैं लगातार, कल पुरुष हॉकी टीम ने देखा, आज महिला हॉकी टीम में देखा, तो कहीं ना कहीं अंदर ये आत्मविश्वास बनता है कि नहीं, इस खेल में हम कुछ कर सकते हैं। It's time that we talk about women and not just having equal right to education, but also equal right to participate in sports as well. मैं 2 नाम शामिल और करना चाहूंगा, एक दीपा कर्माकर। एक दीपा कर्माकर और कर्णल It was मल्लेश्वरी से not a पहले conclusive list, so I was just absolutely a top of mind recollection it was. But the point is, we need to have
equal opportunity for women when it comes to sports as well. बिल्कुल बिल्कुल, और आप ओलंपिक स्पोर्ट्स से इतर भी महिला क्रिकेट टीम को भी इसमें शामिल कीजिए तो पिछला कुछ जो दौर रहा है वो परिदृश्य पूरा बदला है। अब महिला खेलों को संजीदगी से लिया जाने लगा है। नहीं तो हरियाणा से और जहां से भी लड़कियां आती हैं वहां पर ये कहा जाता था कि खेल में कोई करियर नहीं है, शादी करो, बच्चे पालो, घर संभालो। लेकिन अब आप देखिए कि ओलंपिक खेलों ने पूरा ये जो मानसिकता है पूरी बदल कर रख दी है। और हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए हमारी महिला खिलाड़ियों का कि पिछले ओलंपिक में रियो की आपने बात की, वहां पर भी 2 लड़कियां ही पदक लेकर आई थी और इस बार भी लड़कियों ने ही अभी तक पदक सुनिश्चित किए हैं। पुरुष हॉकी टीम के अपवाद को हम छोड़ दें तो लड़कियां ही भारत का झंडा एकदम बुलंद किए हुए हैं। तो जिस तरह शिक्षा में, राजनीति में, हर क्षेत्र में लड़कियां आगे हैं, उसी तरह मुझे लगता है खेलों में, और मैं तो कहूंगी खेल पत्रकारिता में भी लड़कियों को आगे आना चाहिए। Okay, आप अपनी बात कहते हुए खेल पत्रकारिता में आप बहुत जबरदस्त हैं और जिस तरीके से हॉकी आपकी बीट रही है और जाहिर है कि उसी इमोशंस की वजह से आपकी आंखों में आंसू देखे गए। और श्री इमोशंस और स्पोर्ट्स एक साथ चलते हैं, अलग नहीं हो सकते। Right.